Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all students are very well. And today I start my lecture. The topic of today's lecture is how to write instructions or how to use English grammar for writing instructions. Why we have captioned this English grammar in instructions? That we know that if we are writing any sentence of English, we should know that what is the correct rules and regulations of using English grammar or of using prepositions, parts of the speech, and we have covered all of the topic in previous classes, that how to make sentences and what is punctuation, what are parts of the speech that we have to follow when making sentences. So I start my lecture from here. I am again repeating the topic of the lecture is how to write in instructions or how to write English grammar, or how to use English grammar for writing instructions. First of all, I want to explain that here what is the meaning of instructions. Instructions means that we are giving any technical guide or user manual with any electronic device, that how to use it, how to operate it, what are the safety precautions, and what are the hazards that can be affect you if you will be use this device with wrong pattern. Instructions can also be without technical advices, without means आपके पास कोई टेक्निकल जरूरी नहीं है कि कोई टेक्निकल डिवाइस हो उसी के लिए आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं. इंस्ट्रक्शंस किसी भी चीज के लिए लिखी जा सकती है. फॉर एग्जांपल दैट हाउ टू ओपन दिस बॉक्स. अगर आप किसी को सरप्राइजिंग गिफ्ट दे रहे हैं उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दें कि पहले आपने ये पार्ट करना है, फिर ये इस तरह से खोलना है, उसके बाद ये करना है, तो उसको भी आप जो है इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं. और अक्सर आप देखते हैं रेसिपीज शेयर हुई हुई होती हैं, कुकिंग रेसिपीज, बेकिंग रेसिपीज, तो उसके अंदर भी हम क्या दे रहे होते हैं, यूजर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं दैट हाउ टू फॉलो these instructions, and then you can make this recipe. In business writing, technical writing, and other forms of composition, instructions are written or spoken directions for carrying out a procedure or performing a task. अगर आपसे पूछा जाए इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं और क्यों लिखी जाती है, तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक ऐसी डायरेक्शंस हैं, चाहे आप वो लिख के दें चाहे वो आप बोल के दें, उसके अंदर आप प्रोसीजर बता देते हैं, ये काम करो ये ना करो. अगर हम देखें ये इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप होती है. उसके अलावा इंस्ट्रक्शन ऐसी भी हो सकती है जो कि एक या दो लाइनों की हो. जैसे अक्सर हम बच्चों को कह रहे होते हैं शोर नहीं मचाओ, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा बंद करो, ये चीज उठा के यहाँ रख दो, तो ये सब भी क्या है, दीज ऑल आर इंस्ट्रक्शंस. स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टिपिकली यूज द सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. मोस्टली हम उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि आप जो जिस बंदे को हम या जिस चीज जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं उसको मुखातिब करके बोल रहे होते हैं. यू ओपन दिस डोर, यू कनेक्ट दिस वायर्स फ्रॉम अनदर टर्मिनल, एंड कनेक्ट योर बैटरी विथ एसी सप्लाई. इस तरह से कोई भी है तो उसमें यू योर ये यूज होगा, आई का वर्ड यूज नहीं होगा या वी यूज नहीं होगा. Instructions are usually conveyed in the active voice and the imperative mode. Instructions क्या होती है, वो active voice में होती है. उसमें हमने passive voice यूज नहीं करना होता कि पहले ऑब्जेक्ट लिखें फिर by लगा के सब्जेक्ट लिखें, बल्कि सब्जेक्ट को क्या काम करना है, doer of an action से स्टार्ट होगी इंस्ट्रक्शन. या सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, जैसे इस तरह से लिखेंगे कि plug your device, on your device, switch off your laptop, इस तरह से कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है जो हम डायरेक्टली सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं. Instructions are often written in the form of a numbered list so that users can clearly recognize the sequence of the task. ऐसा नहीं लिस्ट तो बनानी है, ठीक है, मतलब डिफरेंट लाइंस में हर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे. अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो it would be difficult for user that how many instructions are there and how many instructions I have followed and how many are remaining. So, अगर आप इंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे पॉइंट्स में 1 2 3, तो वो देखते अंदाजा हो जाएगा कि मुझे 6 स्टेप्स लेने, और इसमें से अगर वो दरमियान में पहुंच गए तो 3 स्टेप्स मैंने किए थे अभी, तो मैं चौथे को रीच करूँ.
फॉर एग्जाम्पल कोई 15-20 इंस्ट्रक्शंस है, सब में आपने बुलेट पॉइंट यूज किए हैं, 1 2 3 या ABCD नहीं किया। अब वो भूल गए कि मैं कितनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर चुका हूँ, तो एक एक लाइन को पढ़ते हुए आएंगे, फिर अंदाजा होगा कि हम कौन से बुलेट पॉइंट पे थे। नंबरिंग से ऐसा अंदाजा होगा कि कितने स्टेप्स कर चुके हैं, तो रफली एक आइडिया होगा मैं 4 या 5 स्टेप कर चुका हूँ, मैं छठे पॉइंट पे चले हूँ, उसको रीड करूँ तो मुझे अपना नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। Instructions intended for an international audience may rely entirely on pictures and familiar symbols. Instructions जो हैं आप सैम्बल्स की सूरत में भी दे सकते हैं, पिक्चर्स की सूरत में दे सकते हैं। सैम्बल्स की सूरत में जैसे हमारे पास एक डेंजर का वो बना हुआ था, त्रिकोण सा होता है, येलो कलर का लोगो होता है, उसके ऊपर क्रॉस डला हुआ होता है, तो एक डेंजर की अलामत है। अक्सर ये होता है, ये डेंजर का जो सैम्बल है कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो गाइडलाइंस होती हैं उसके अंदर यूज होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पानी के टैंकर होते हैं, ऑयल का टैंकर जा रहा होता है, तो उनके ऊपर रेड से लिखा होता है खतरा या डेंजर, वो उनका लोगो वो यूज करते हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर या जैसे कि वो आते हैं यूनिवर्सिटी में, जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर भी आप देखें येलो कलर का सिंबल बना हुआ होता है, उसके ऊपर जो है वार्निंग लिखा हुआ होता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या क्रॉस मार्क्स लगा हुआ होता है। तो अब क्या है, वो सिंबल इतना रिकॉग्नाइज हो गया कि हमें कहीं भी वो बना हुआ नजर आएगा तो हमें बजाय इसके कि हम पूरा पढ़ने के, हमें थोड़ा सा दूर से अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई डेंजर चीज है जिसको अगर हम मिस ऑपरेट करें तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस। Observations and examples. Good instructions are unambiguous, understandable, complete, consistent and efficient. Good instruction कौन सी होती है, जो कि complete हो, consistent हो, एक साथ चल रही हो, ये नहीं कि कोई बात कहीं लिखी है, कोई बात कहीं लिखी है। efficient होनी चाहिए वो instructions, जिसको हम follow कर सकें और उतने आसान word में हो, या उसकी जो ग्रामर हो, उसकी जो vocabulary हो, वो इतनी आसान और easy हो कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आसान और इजी नहीं भी है, मुश्किल है, लेकिन वो आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया तो दूसरे को पढ़ने में पहली दफा में समझ में आ जाए, तो ये हमारे पास गुड इंस्ट्रक्शन कहलाई जाती है। तो अगर आपसे इंस्ट्रक्शन पूछा जाए कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, तो यू नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लाइन। बट if I ask about the good instruction, so this is the definition of good instruction, जो जिस कोटेशन में लिखी हुई थी अगर वो आप वो एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन गुड इंस्ट्रक्शन की किसने दी है, जॉन एम पेनर्स ने दी है। ठीक है, आप इनके नाम के साथ ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए, ये जिन्होंने ये आर्टिकल राइट किया उनकी डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को आपने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है। अच्छा जी, ये एक हमारे पास हैंडबुक फॉर द रिसेंटली डिसीज, ये एक लाइटर साइड ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जो कि इन्होंने जिस तरह डायलॉग राइटिंग होती है कि किस पर्सन ने क्या बात कही है, वो इन दोनों के दरमियान में चल रही है, तो ये इस तरह से। लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे या हमें फिलहाल जो हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी वो यही पूछ रहा है कि क्या तुमने स्टडी मैनुअल रीड किया, उसने बोला यस मैं आई ट्राइड, इंटरफेस चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में ये था, तो ये सब डायलॉग राइटिंग का पार्ट है। इंस्ट्रक्शंस जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए, उसमें आप किसी से डायरेक्टली मतलब बात नहीं कर रहे, सिर्फ किसी भी यूजर को अपनी थॉट पे रख के उसको समझा रहे हैं कि पहले ये काम करो फिर ये काम करो। अब ये आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, अगर हम देखें ये टॉपिक हम इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ा रहे हैं या हमें इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में तो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसमें आपको जो है इंग्लिश लिखने का तरीका सिखाया जा रहा है, कैसे लिखनी है और वर्ड्स कहाँ से स्टार्ट करने, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करने, और जनाब टेंस कौन सा यूज करना है, एक्टिव वॉइस यूज करना है, पैसिव वॉइस यूज करना है, ये सब इसलिए इंग्लिश के कोर्स में include है। फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को क्या करना है, कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जॉब करनी है या अपना कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, कोई इस तरह की डिवाइस बनानी है कि जब भी हम देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे घर में आती है, चाहे वो छोटी सी कोई टीवी की डिवाइस हो या टीवी हो, मोबाइल हो, कोई जो है किचन में जितनी सारी मशीन यूज होती है उनमें से कोई मशीन हो, उन सबके साथ एक छोटा सा गाइड मैनुअल आता है। गाइड मैनुअल ना आए तो उसके बॉक्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है। तो जब आप कोई डिवाइस इन्वेंट करेंगे या फिर उसको बनाएंगे या कंपनी में किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो साथ में कस्टमर को इंस्ट्रक्शंस भी लिख के देंगे। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शंस। बेसिक फीचर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Instructions tend to follow a consistent step-by-step pattern, whether you are describing how to make coffee or how to assemble an automobile engine.
ने बोला कि इंस्ट्रक्शंस को आपने स्टेप बाय स्टेप पैटर्न में लिखना है. अब it depends on you that you are writing about any electronic device, automobile engine, or you are writing about making coffee. Although it is a simple task, but you have to mention all of these steps, like take some water in a pot, heat it, make in, in, include or put coffee, 1 spoon, teaspoon, 1 tablespoon, yeah, 2 tablespoon, then add sugar, and what will be the quantity of the sugar you have to mention also, and then heat it with 10 minutes or 5 minutes. ये आप पूरा प्रोसीजर इस तरीके से लिखेंगे. ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में लिखेंगे दैट हाउ टू असेंबल, तो उसके सारे स्टेप्स लिखेंगे. फिर जब असेंबल हो जाए उसको चेक करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है कि मैंने ये सारे काम कर लिए हैं, उसके बाद मैं इसको इंजन को स्टार्ट करूँ. तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी. इंस्ट्रक्शंस कैसी होनी चाहिए? It should be specific and precise title. इसका टाइटल स्पेसिफिक और प्रिसाइज हो. इंट्रोडक्शन विद बैकग्राउंड, ये आपको बता रहे हैं जैसे आप कोई गाइड मैनुअल लिखते हैं, उस गाइड मैनुअल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं. फिर उसका टाइटल स्पेसिफिक दें, प्रिसाइज दें. इंट्रोडक्शन में उसका थोड़ा बहुत डिवाइस का देंगे कि भाई ये एक डिवाइस है, इसका ये काम है, वो काम है, तो उसके साथ थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी. देन लिस्ट ऑफ पार्ट्स, टूल्स एंड कंडीशन रिक्वायर्ड. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही पार्ट में मुश्तमिल हो, मे बी उसके 3-4 पार्ट हो. जैसे कि अगर मैं फूड फैक्ट्री की बात करूँ क्योंकि किचन में यूज होती है, तो उसके साथ क्या है, ग्राइंडर भी आएगा, हैंड बीटर भी आएगा, या क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक बीटर है, और मशीन अलग है, जग अलग है, जूसर है, और इसके अलावा और डिफरेंट चीज़ें पार्ट्स उसके साथ में. तो वो एक लिस्ट पूरी प्रोवाइड की जाएगी कि इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ है. सर हम कोई किचन की चीज़, मैं किचन की ज़्यादा एग्जांपल दे रही हूँ फिलहाल, लेकिन हमारी क्लास में लड़कियां कम है तो हम जाते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ. फॉर एग्जाम्पल हम जो है कंप्यूटर का पूरा सेट खरीदते हैं. जो कंप्यूटर होता है ना, उसकी मतलब माउस है, सीपीयू, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें अलग अलग उसके साथ आ गई. तो वो एक लिस्ट मिल जाएगी कि आपने ये पूरा पैकेज उनसे परचेज किया है. तरह हम टीवी अगर एलसीडी खरीदते हैं, उसके साथ हमारे पास एक लिस्ट आएगी कि इसके फीचर्स के बारे में. तो यहाँ पे भी यही लिखा है, आप उसके पार्ट्स, टूल्स, कंडीशंस, या उसकी इंफॉर्मेशन, तो क्या क्या लिखेंगे हम उसके अंदर, कितने वोल्टेज सप्लाई है, कितने पावर ये यूज़ करता है, कितने वोल्टेज ये यूज़ करता है. फिर उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कि आप उसके ऊपर जो है इंटरनेट चला सकते हैं या नहीं चला सकते, यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सब आप टेबल बना के भी दे सकते हैं कि एक टेबल बनाए, उसके अंदर लिखें यूएसबी कनेक्टेड. अगर यस है तो यस लिख दे, नो है तो नो लिख दे. इंटरनेट या वाईफाई अवेलेबल है या उससे कनेक्ट हो सकता है, फिर इसी तरह से कॉलम में यस लिख दें या फिर नो लिख दें. कोई ग्राफिक्स वगैरह की पिक्चर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे आप ग्राफिक्स शो करके बताएं. टीवी के अंदर एलसीडी में ऑप्शन आता है कि आप यूएसबी के थ्रू वो प्ले कर रहे होते हैं वीडियोस वगैरह या पिक्चर्स, तो आप जो है वहाँ पे उसके स्नैपशॉट्स लगा दें कि किस तरह से आप इस ऑप्शन पे जाएंगे कि वो प्ले होगा. पहले सब कुछ इंस्ट्रक्शंस में लिखना है कि ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, फिर अगर आप उसकी पिक्चर्स की स्नैपशॉट देना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं. अब सिक्वेंशियली ऑर्डर्ड स्टेप्स है क्या मतलब, अगर मैं आपको यही एग्जांपल दूं कि हमें एलसीडी ऑन करके जो हमारे यूएसबी के अंदर मूवी है वो चलाना है, तो हम पहले लिखेंगे कि स्विच ऑन द टीवी या स्विच ऑन द एलसीडी. उसके बाद लिखें गो टू मेन्यू ऑप्शन, मेन्यू ऑप्शन में गए, देन क्लिक दिस ऑप्शन, देन मूव राइट और लेफ्ट, जिस तरफ भी आपका कर्सर जाएगा और जौन सी भी लिस्ट होती रहेगी वो बताएं. देन सर्च द नेम ऑफ योर वीडियो, मिल गया, नाम भी मिल गया, प्ले इट. अब प्ले के लिए कौन सा बटन दबाना है वो भी बताएंगे. फिर ये प्ले हो गई, यहाँ तक आ गया. अब हम उसमें मजीद क्या बताएंगे कि अगर हमें उस वीडियो को या उस मूवी को फॉरवर्ड करना है तो व्हाट विल बी द ऑप्शन फॉर फॉरवर्ड, व्हाट विल द ऑप्शन फॉर बैकवर्ड और पॉज, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी. सेफ्टी इंफॉर्मेशन, अब सेफ्टी इंफॉर्मेशन हम किसी अगर उसकी बात ले लें, जैसे मैंने आपको 5 एक्सटिंग्विशर की एग्जांपल दी थी, तो उसके ऊपर उसकी सेफ्टी इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि आपको वो यूज करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है. कंक्लूजन दैट सिग्नल्स कंप्लीशन ऑफ टास्क, तो सारे टास्क में ऐसा कोई कंक्लूजन निकल रहा है तो आप सब कंक्लूजन मेंशन कर सकते हैं. ये चेक, अब आप इंस्ट्रक्शंस लिख चुके हैं या इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले, तो एक चेकलिस्ट अपने माइंड में रखें. अगर लिख चुके हैं तो लिखने के बाद ये सारी चीज़ें मेंशन करें. ठीक है. अच्छा, अभी फिलहाल जो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या करें,
कि इसकी स्नैप जो है अपने मोबाइल से लेके रख लें केवल इसकी, ताकि मैं अभी आपको कोई टास्क लिखने को दूं तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है ये टास्क कर सकते हैं मोबाइल को देखते हुए। चेकलिस्ट फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या बताया जा रहा है, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स। आपको सेंटेंस शॉर्ट रखना है, पैराग्राफ भी शॉर्ट रखना है, और अरेंज योर पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर। आपके जो पॉइंट्स है वो लॉजिकली ऑर्डर में होने चाहिए। यूज द इम्पेरेटिव मोड, पुट द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम इन ईच सेंटेंस एट द बिगिनिंग। जो सेंटेंस की बिगनिंग है ना, उसके स्टार्ट में ही आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दी, जैसे कि ओपन द स्विच, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, या फिर प्लग ऑन योर डिवाइस। इस तरह के, जैसे हम किसी किट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपने वीएचपी किट पे कभी काम किया हो या आपने एफपीजीए किट के ऊपर काम किया हो, तो उसके कनेक्शंस किस तरह बनाए, कनेक्ट दिस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल विद द बैटरी, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो जो काम करना है उस वर्ड को सेंटेंस के बिगनिंग में ही लिख दें, ताकि वो वहां से समझ में आ जाए कि नेक्स्ट स्टेप कनेक्शन का है या प्लग इन का है, प्लग आउट का है, क्या है। से वन थिंग इन इच सेंटेंस, हर सेंटेंस में एक ही बात की जाए, फिर आप लाइन चेंज कर दें, फुल स्टॉप लगा के नंबर दूसरा चेंज कर दें। अब देखा जाए तो ये जो चेकलिस्ट है, ये भी एक तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस ही दी जाती है। ये इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ की दी जा रही है, दैट हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शंस। तो इसके अंदर भी इन्होंने जो है बुलेट नंबरिंग में ही की है। चूज योर वर्ड्स केयरफुली, अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज करें। अवॉइड जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स इफ यू कैन। जार्गन के बारे में हम शायद पढ़ चुके हैं या नहीं आप क्लास में। जार्गन क्या होता है, जार्गन मतलब ऐसे टेक्निकल टर्म्स जो कि सिर्फ टेक्निकल लोग ही ज़्यादा उसको जानते हैं। जैसे कि अगर हम मेडिकल की एग्जांपल लें, तो मेडिकल के अंदर कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, नर्सेस यूज़ करती हैं, अगर वो हमसे वो बात कहेंगे तो हमें समझने में मुश्किल होगी। अब तो खैर बहुत ज़्यादा वर्ड्स कॉमन हो चुके हैं, तो सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की स्टडी जो कि उनको पता है हमें नहीं पता, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। अब या फिर हम जैसे इंजीनियरिंग की तरफ जाएं और मैथ्स की बात करें, हम वहाँ पे जिक्र करते हैं किसी वेरिएबल थीटा की, डेल्टा की, ठीक है। लेकिन अगर हम ये थीटा, डेल्टा, ये सारे वर्ड्स किसी और के सामने बोले तो उनमें से किसी को समझ नहीं आएगा। अब हैं तो ये टेक्निकल टर्म्स, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस लिखते वक्त जो है हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हम टेक्निकल टर्म्स कम से कम यूज करें, क्योंकि यूजर मैनुअल जो है वो इंजीनियर्स को नहीं दिया जा रहा था। यूजर मैनुअल तो आम पब्लिक को दिया जा रहा है कि जो इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं, they have to learn that how to use this device, but they don't know the jargon or any technical terms. So we keep in mind while writing the instructions. Give an example or an analogy if you think a statement may puzzle a reader. अगर आपको लगे कि आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो रीडर को समझ नहीं आएगी या उसके माइंड को जो है डाइवर्ट करेगी, तो आप उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं। चेक योर कंप्लीटेड ड्राफ्ट फॉर लॉजिक ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आपका एक ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आप उसकी लॉजिक देखें, प्रेजेंटेशन देखें कि सब चीज़ें सही हैं। डोंट ओमिट स्टेप्स और टेक शॉर्टकट्स। कोशिश ये ना करें कि हम शॉर्टकट लेके आगे बढ़ जाएं, ये वाला स्टेप छोड़ दें। यूज़र ये समझें कि यूज़र बिल्कुल ब्लाइंड है, उसे कुछ भी नहीं पता। आप ये नहीं सोचें कि मैं जो हूँ मैंने तो ये बनाई है, क्या कोई पावर सप्लाई मोटर बनाई है या कोई जो है वाटर सप्लाई मोटर बनाई है, और ये तो लोग इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, उनको तो पता ही है कि इसको कैसे जो है यूज़ करते हैं। आप ये समझें कि आप अपनी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो है डील करेगी जिसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पे कुछ हेल्पफुल हिंट्स हैं, इसको आप रीड कर लेगा प्रॉपर्टी दैट will be necessary when you write the instruction. Use white space, graphics and other design elements to make the instructions appealing. अगर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को अपीलिंग बनाना चाहते हैं या जोर देना चाहते हैं कस्टमर के ऊपर कि वो किस तरीके से सही इंस्ट्रक्शंस लिखे, तो उसके लिए आप उसके अंदर स्पेस यूज़ करें, ग्राफिक्स यूज़ करें, डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ करें, जो कि आपके गाइड मैनुअल को अट्रैक्टिव बनाएगा और पढ़ने में जो पढ़ने के बजाय टाइम सेव होगा अगर सिंबल्स दिए हुए।
ऐसे डेंजर की जहाँ पे सारी चीजें लिखी है वहाँ डेंजर का सैंपल बना दिया और उनको उस वक्त वही रीडर को वही रीड करना था कि क्या क्या डेंजर है, वो डायरेक्ट डेंजर वाले ऑप्शन पे या हेडिंग पे जाके उसको पढ़ना शुरू कर देगा। वार्निंग, वार्निंग का सिंबल बना दें और वो पढ़ लेगी। सारे सिंबल्स की ही जो है मैं भी एक असाइनमेंट देती हूँ या होमवर्क देती हूँ, इसके साथ साथ आपने बनाना। Testing instructions. To evaluate the accuracy and clarity of a set of instructions, invite one or more individuals to follow your directions. टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपको अपनी इंस्ट्रक्शन की क्लियरिटी और एक्यूरेसी के साथ उसको लिखना है और जिन लोगों से आप उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको डायरेक्शन फॉलो करने कहा जाए। देन ऑब्जर्व, क्या वो ये सारे स्टेप सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंस्ट्रक्शंस की एक और एग्जांपल मैं ऐसे दूं जैसे कि बीई का मैनुअल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का मैनुअल दे दूं, उसके अंदर आपको कोई भी सर्किट डिजाइन करने को कहा जाता है जो कि ब्रेडबोर्ड के ऊपर डिजाइन करना है। इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है ना कि इसको सीरीज में कनेक्ट करें, इसको पैरेलल में कनेक्ट करें और एलईडी ऐसे ब्लिंक होगी, इसको पावर सप्लाई यहाँ से दें, तो वो भी इंस्ट्रक्शन है। अब वो इंस्ट्रक्शन टीचर ने देख लिया। टीचर की क्या जिम्मेदारी है कि जब स्टूडेंट्स वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको बहुत देखें कि उन्होंने जो जो स्टेप्स लिखे हैं क्या वो वही स्टेप फॉलो करते हुए सक्सेसफुली एक सर्किट को डिजाइन करने उसको रन करने में कामयाब हुए। अब अगर कामयाब नहीं हुए, फेल हुए, तो उसकी दो रीजन हो सकते हैं। या तो टीचर ने जो स्टेप्स लिखे हैं उनके अंदर से उन्होंने कोई स्टेप ओमिट कर दिया जो इसकी वजह से, या ये अज्यूम कर लिया कि स्टूडेंट्स को ये बात तो पता ही होगी, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स ने जो है वो स्टेप सारे फॉलो नहीं किए और आपने सब लिखे। तो दिस इज द पॉइंट व्हेन यू कैन रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक और स्टूडेंट्स मिस्टेक। सो ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये देखा कि इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जा सकती हैं, इंस्ट्रक्शंस को जो है लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, दैट हाउ कंपनीज कैन राइट इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स देंगे इंस्ट्रक्शंस। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब केबल वॉच केबल टेलीविजन, टेलीविजन की सिंपल एग्जांपल जैसे मैं देखी यहाँ पे देख लेते हैं मैंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। फाइंड कंट्रोलर एंड टर्न ऑन टेलीविजन यूजिंग कंट्रोलर्स पावर बटन। कंट्रोलर यहाँ पे किसी का है, रिमोट को कह रहे हैं, रिमोट बोलते हैं, कंट्रोलर लिखा हुआ है। अब देखिए ये जार्गन लैंग्वेज है। अब अगर कोई यूजर एलसीडी परचेज करता है वो सोचेगा कि कंट्रोलर क्या होता है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, फाइंड द रिमोट ऑफ द टीवी, और फाइंड भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेस द पावर बटन ऑफ द रिमोट, तो उससे जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। इफ अनरिस्पॉन्सिव टर्न ऑन टीवी बाय पुशिंग ऑन ऑफ बटन एट बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन। मतलब अगर आपका रिमोट काम नहीं कर रहा, एक इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन के साथ ये बात भी लिख देंगे कि अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन काम नहीं कर रही, इसका कोई ऑल्टरनेट मौजूद है, तो उसी लाइन में साथ में लिख दें। तो अनरिस्पॉन्सिव टर्न ऑन टीवी, टीवी रन नहीं होता रिमोट से, तो मैंने बताया कि टीवी के राइट बॉटम में स्क्रीन पे, टीवी के राइट बॉटम में बटन दिया हुआ है, आप वो प्रेस करें, उससे ऑन ऑफ करें तो आपका टीवी स्टार्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ वीडियो देखें, HDMI है या AV1 है, यूजिंग इनपुट बटन, और इनपुट बटन जो है यूज करते हुए आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। देन यू कैन एडजस्ट द स्पीकर वॉल्यूम बाय यूजिंग वॉल्यूम मोड। Find sudden link controller and ensure that it is operating in cable mode। फिर आप देखेंगे केबल मोड के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। टर्न ऑन केबल टीवी बॉक्स, और इस तरह के सारे इंस्ट्रक्शन आए, ठीक है। दूसरे इंस्ट्रक्शंस पे हम जाते हैं, वॉच और डीवीडी, कन्वेंशन और ब्लू-रे। इसमें भी टाइप की तकरीबन सारे इंस्ट्रक्शन है। हेडफोन की इंस्ट्रक्शन है, लिसन टू केबल म्यूजिक, टर्न ऑन टेलीविजन सेट एंड केबल बॉक्स एज डिस्क्राइब्ड अबव। अब देखें हमें दो इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ही गाइड मैनुअल के अंदर दो बातें लिखनी थी। एक में हमें जस्ट ये बताना था कि किस तरीके से हम वहाँ पे केबल टेलीविजन वॉच कर सकते हैं। दूसरे में हम बताना है कि हम केबल पे जो म्यूजिक आ रहा है उसको किस तरह से सुन सकते हैं। अब यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन दोबारा थी कि टेलीविजन कैसे ओपन करना है, केबल बॉक्स कैसे ओपन करना है, तो उन्होंने इसको अगेन रिपीट करने के बजाय क्या लिखा, एज डिस्क्राइब्ड अबव। ऐसा हम कब लिखेंगे, जब एक ही मैनुअल के अंदर कोई चीज दोबारा से रिपीट करें। सिलेक्ट चैनल, चैनल का नाम बता दिया, और यूजिंग स्टूडेंट लिंक, सडन लिंक कंट्रोलर, यहाँ पे आप इसके रिमोट लिख सकते हैं, वहाँ पे कंट्रोलर का नाम दिया हुआ है जहाँ ये डिवाइस यूज हो रही है।
स्कैन म्यूजिक चैनल, अब आप इस म्यूजिक चैनल स्कैन करें 901 से 999 तक जो है म्यूजिक चैनल्स हैं इनके टीवी पे या इनके जो केबल बॉक्सेस पे, उसमें आपको म्यूजिक चैनल मिल जाएगा। लिसन टू रेडियो म्यूजिक, टर्न ऑन सोनी स्टेरियो। अब रेडियो म्यूजिक सुनना है तो बता दीजिए इस तरह से आप इसको ओपन करें, एएम और एफएम सेलेक्ट करें क्या सुनना है और रेडियो स्टेशन जो इंटरेस्ट का है वो स्कैन कर लें, हैंड्स फ्री लगा लें। इस तरह से स्टेप्स आप लिख सकते हैं। कनेक्ट स्मार्टफोन और पर्सनल, अब आपके पास पर्सनल पीसी है आपने या फिर जो है स्मार्टफोन है, उसके अंदर वो ये भी बताएंगे हाउ टू ब्लूटूथ एंड हाउ टू कनेक्ट विद वाईफाई, हाउ टू मेक अ कॉल। तो ये सारी चीजें वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे बता दिए कि वाईफाई का सैंपल देखें। अब ये भी हो सकता है इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपने लिखा वाईफाई सैंपल। अब जो जिसने मैं वो स्मार्टफोन फर्स्ट टाइम लिया है या नहीं है वो उस चीज़ का पता कि वाईफाई का सैंपल क्या होता है, तो आप जो है आगे ग्राफिक्स के पोर्शन में जाके वाईफाई का सैंपल भी दे सकते हैं या यहाँ पे एक छोटा सा स्टेरिक बनाए और जब सारे इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाए वहाँ स्टेरिक बना के लिखें वाईफाई सैंपल और उसकी एक पिक्चर ऐड करें। गो टू चूज अ नेटवर्क लिखा है, ठीक है। अब किसी को ये नहीं पता चूज अ नेटवर्क का ऑप्शन कहाँ है, कैसे जाना है, तो आप इंस्ट्रक्शंस पूरी कंप्लीट होने के बाद ग्राफिकली वो सारे स्नैपशॉट्स लेके उसमें गाइड मैनुअल में अपने लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस थे। किसी एक ऊपर वाली मैंने पूरी कंप्लीट करके दिखा दी थी, अब मैं ये पढ़ के बता देती हूँ। गो टू फोन्स कंप्यूटर सेटिंग, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बोल रहा यू गो टू या आई गो टू, बल्कि यहाँ पे वर्ड से डायरेक्टली सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। गो टू फोन्स और कंप्यूटर सेटिंग, कंप्यूटर की सेटिंग जहाँ होती है वहाँ पे जाए। इससे एक स्टेप पहला भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रेस द स्टार्ट बटन देन गो टू कंप्यूटर सेटिंग। ओपन वाईफाई नेटवर्क, तो कंप्यूटर सेटिंग में चले गए, वाईफाई नेटवर्क को ओपन करें। गो टू चूजर नेटवर्क, चूजर नेटवर्क में जाएं। अब इनके नेटवर्क का नाम ये था तो मैंने इसको सर्च करें। जब ये मिल जाए तो इसका पासवर्ड ये है, ये पासवर्ड डालिए। वाईफाई सिंबल आ रहा होगा आपके स्मार्टफोन पे कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको देखें और अगर रिबूट करने की जरूरत है तो रिबूट करें। और इस तरह से सारे ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ एक और मैंने इलेक्ट्रॉनिक यूजर मैनुअल आपके लिए निकाल के रखा है। अब देखिए काफी बड़ा मैनुअल था, डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है डिवाइस कितनी बड़ी है उसके अंदर कितने ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइटल पेज के ऊपर ही बताया है कि हम आगे क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे। सेफ्टी एंड ट्रबल शूटिंग, अबाउट दिस मैनुअल, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इंस्टॉलिंग योर मॉनिटर, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, बहुत सारी चीजें। ये पूरा यूजर गाइड मैनुअल सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, क्लोज फ्री, डाउनलोड एंड प्रिंट, ये सब इसके अंदर मौजूद है। सेफ्टी एंड ट्रबल शूटिंग पे अगर हम जाते हैं तो खुल गया, देखिए वार्निंग का सैंपल आ गया। वार्निंग हमेशा रेड से लिखी जाती है, फिर रेड से आप लिख देंगे और ये सैंपल बना देंगे तो फौरन देख के आइडिया हो जाएगा कि इस लाइन में हम वार्निंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे रीड एंड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस व्हेन कनेक्टिंग एंड यूजिंग योर कंप्यूटर मॉनिटर। आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर कनेक्ट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए। वार्निंग क्या है, यूज ऑफ कंट्रोल एडजस्टमेंट प्रोसीजर्स अदर देन द स्पेसिफाइड इन द डॉक्यूमेंटेशन मे रिजल्ट इन एक्सपोजर टू शॉक। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं, जो प्रोसीजर बताए गए हैं, अगर आप उससे बियॉन्ड काम करते हैं या उससे डिफरेंट काम करते हैं तो इट मे बी हार्मफुल फॉर यू। मे बी क्यों बोला, हो सकता है आप सही काम भी कर सकते हैं, वो हार्मफुल ना हो आपके लिए। डोंट अटेम्प्ट टू रिमूव द बैक कवर, बैक कवर रिमूव करना ना भूलें, as you will be exposed to a shock hazard. Don't place objects on top of monitor cabinet, monitor के कैबिनेट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट्स आप ना रखें, होता है लोग चीजें रख देते हैं। Don't use alcohol ammonia based liquid to clean the monitor, monitor clean करने के लिए ये वाले लिक्विड्स यूज नहीं करने।
क्लीन विद अ स्लाइटली डैम्प क्लोथ, हल्का सा गीले क्लोथ से आप उसको साफ कर सकते हैं। और पावर सप्लाई ऑफ रखिए यदि आप इस तरह कोई काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल आ गए थे। अबाउट दिस गाइड, अब इस पूरे के बारे में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, हाउ टू इंस्टॉल, अब इस तरह में आ सकता है हाउ टू इंस्टॉल विंडोज, जो भी है तरीका वो इसमें पूछा जा सकता है। frequently asked question का portion, download your states, अगर मैं आपसे पूछूं what are the main elements of writing user guide manual, तो आप ये सारे इसको बोलेंगे। इसका एक स्नैपशॉट अपने पास वीडियो में से लेकर रख लें, इसको याद कर लें। ठीक है, ये हमारे पास वो सेक्शंस हैं जो कि किसी भी यूजर गाइड मैनुअल में होंगे, डिपेंड कि वो किस तरह की यूजर गाइड मैनुअल है। यहाँ सिर्फ मॉनिटर के बारे में बात हो रही थी, फिलिप्स के कलर मॉनिटर के बारे में, तो ये एक स्क्रीन जानते हैं। ठीक है, अगर एक जनरली बात हो रही होगी तो यहाँ पे ये मॉनिटर वाली हेडिंग नहीं आएगी, यहाँ इंस्टॉलिंग और डिवाइस की हेडिंग आ सकती है। अच्छा जी, ये हो गया। ये आपके पास और अगर मैं सिर्फ पूछूं कि इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, खाली इंस्ट्रक्शंस के पूछूं मेन एलिमेंट्स क्या हैं, तो वो हम यहाँ पे इस वाले में रीड कर चुके हैं कि बेसिक फीचर्स इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास ये है कि ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट ऑफ पार्ट्स टूल्स दिए हुए हो, ऑर्डर स्टेप होने चाहिए, ग्राफिक्स होनी चाहिए, सेफ्टी इंफॉर्मेशन दी गई है, कंक्लूजन, प्रिसाइज टाइटल, ये सब बेसिक फीचर्स हैं इंस्ट्रक्शंस के। और वो सब जो हमने अभी पढ़ा, ये किसी भी यूजर गाइड मैनुअल के फीचर्स हैं या उसके जो है सेक्शंस हैं जो कि उसमें डिफाइन होना जरूरी है। अब इट मे वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स दैट हाउ व्हाट इज योर प्रोडक्ट, उसके हिसाब से आपकी हेडिंग चेंज हो सकती है। अब ये कुछ सिंबल्स दिए गए, ठीक है, नोट का सिंबल ये होता है, क्वेश्चन का ये है, वार्निंग, स्मार्ट हेल्प। प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में आप इस तरह से लिख सकते हो, उसके कोई डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स देखिए मैंने बताया ना टेबल, कि आप शुरू में एक एग्जाम्पल दीजिए टेबल के आगे यस और नो करके फिल करते, तो ये भी एक तरह से टेबल ही बना हुआ है, बस इसके इन्होंने वो हाईलाइट नहीं किए हैं बॉक्सेस। तो मॉडल नंबर लिखे, डिवाइस के रेगुलेशन लिख दी, कलर कौन कौन से अवेलेबल है वो लिख दी। इसी तरह से अगर किसी मोबाइल के बारे में लिख रहे हैं तो मोबाइल का जैसे कि मैं बात करूँ सैमसंग, सैमसंग गलेक्सी S7 S1 S2, इस तरह से आप उसके जो है मॉडल नंबर लिख सकते हैं। फिर वो कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है, अगर एक ही मॉडल 3 कलर में अवेलेबल है तो उसी कॉलम के आगे कलर के 1 2 3 तीनों कलर्स के नाम। अब सिर्फ इन्होंने इस वाले मॉडल की डिस्क्रिप्शन देनी है, 202P70, तो वो सब इधर आ गया। उसकी कितने इंच की स्क्रीन है, स्क्रीन डिस्प्ले कैसा है, या जो रेजोल्यूशन साइज है वो क्या है, फीचर्स कौन से हैं। फिर हमें दूसरे के बारे में लिखना है, दूसरा मॉडल नंबर डालेंगे, इसके जो भी डिफरेंट फीचर्स हैं वो सारे लिख देंगे। तो ये रिपीटिंग फीचर्स हैं तो वो भी इंक्लूड लिख सकते हैं, या फिर इसकी जस्ट हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि दीज आर दी सेम एज मॉडल नंबर 1। Hence, this is the complete manual. आप एक दफ़ा इस लिंक को मैं शेयर करूँगी आपके साथ सारे लिंक्स, तो ज़रूर पढ़िएगा, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि गाइड मैनुअल कैसे बनाना है। ये इस तरह से हमारे पास आती है पैरेलल कोड, सीरियल कोड, उसके जो हम शुरू की लैब से पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से पिन कॉन्फ़िगरेशन दी होती थी। इस वाली पिन से का ये मतलब है, इस पिन का ये मतलब है, तो उन्होंने यहाँ पे जस्ट हाईलाइट किया 1 6 11 5 10 15, इस तरह आप सबको हाईलाइट कर दें 2 कौन सा है। अब ये 1 कर दिया, ये 5 इसका और बीच में नहीं किया, तो सही है, मतलब है 1 2 3 4 5। देन हियर इज अ टेबल, और हर टेबल में बता दिया गया कि कौन सी पिन नंबर क्या काम करती है, और इस टेबल में इसको गाइड कर दिया। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम दो चीजें कवर कर रहे हैं। एक चीज हम ये कवर कर रहे हैं दैट हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शन, दूसरी चीज हम ये कवर कर रहे हैं दैट हाउ वी कैन गाइड मैनुअल और यूजर मैनुअल। ठीक है, इसको मैं आपको एक असाइनमेंट में दूंगी, उसमें आपने गाइड मैनुअल बनाना है, ठीक है, और एक अभी होमवर्क दे रही हूँ जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। एक और एग्जांपल मेरे पास ओपन हुई है इंस्ट्रक्शंस की, जो कि एक बहुत क्लियर और आसान सी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर फॉलो होंगे। ये एक कुकिंग टास्क है, हाउ टू राइट क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट कुकिंग।
नंबर 1 क्या है, गैदर द मटेरियल्स नीड। कौन कौन से मटेरियल जरूरी है वो आप वहाँ पे लिस्ट बना दें। अगर आप कोई सब्जी बनाने जा रहे हैं तो ये सब्जियाँ चाहिए, ये टूल्स चाहिए उसको कटिंग के लिए। और देखिए इन्होंने ग्राफिक्स के साथ दिया। अभी हम लिस्ट डाउन कर रहे थे तो एक लिस्ट डाउन पिक्चर दे दी, पेन दे दिया, कुछ चीजें इसमें कलेक्ट कर ली। दूसरे में क्या है, परफॉर्म द टास्क योरसेल्फ। आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कि इंग्रेडिएंट्स आपने पॉट में डालना शुरू किए, ये भी जो है पिक्चर के थ्रू दिखा दिया, ताकि पिक्चर देखते भी थोड़ा अंदाजा हो। और देन यू राइट, डिटेल आउटलाइन बना ली, अपनी ऑडियंस डिफाइन करें। आप किसको ये चीज समझाने जा रहे हैं तो उसी की टर्मिनोलॉजी में यूज करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया। और जैसे कि ये जो डिश आप बनाने जा रहे हैं ये ओरिजिनली कौन से मुल्क से या सिटी से बिलोंग करती है, किस तरह से ये डिश होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की हिस्ट्री बता रहे थे प्रोग्राम आ रहे थे कि ये डिश जो है बेसिकली चाइना की है, रशिया की है, सब कॉन्टिनेंट की है, या पाकिस्तान की है, या पाकिस्तान में किसी मकसद से ला के ये सब्जी वगैरह बलूचिस्तान की है। इस तरह से सिंधी बिरयानी से रिलेट करती है, तो वो एक बैकग्राउंड आ जाए। फिर आप उसके बारे में न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप फिश के बारे में लिख रहे हैं, अगर फिश बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स का पोर्शन इंस्ट्रक्शन में ऐड कर सकते हैं कि इसमें प्रोटीन होते हैं, ये हेल्थ के लिए इसलिए ज़रूरी है और किस किस तरह से आपकी बॉडी को फ़ायदा देती है। यू कैन ऑल्सो मेंशन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दैट डिश। अब देखिए पहला पार्ट क्या आया, जब इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट और शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन लिखा। पार्ट 2 के अंदर ये पूरा ऊपर था। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर क्या है, पहले पार्ट में जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टास्क था कि आपको सारी चीजें बताती है। दूसरे पार्ट में क्या है, राइटिंग और इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने फिश वॉश करनी है, इसको ड्राई करना है, उसको एक प्लेस पे रखना है, देन उसके ऊपर ये सारी चीजें लगानी है। देखिए आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ कुछ खाना पकाना भी आ जाएगा, तो आप देख लें कुछ किस तरह फ्राई होती है। फिर किस दिन अपने घर वालों को आप बना के खिला सकते हैं। बाजार से मछली लाएं, पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, उसको अच्छी तरह से धोएंगे तो सारा ब्लड वगैरह साफ करेंगे, देन इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद आप उसके अंदर लेमन जूस लगा के रख दें। और क्या क्या लगा सकते हैं, सीजन विद सॉल्ट एंड पेपर ऑन बोथ साइड, उसके ऊपर सॉल्ट लगा दें, पेपर लगा दें। और बाकी कोई और रेसिपी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, यहाँ पे जस्ट सिंपल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो सब लगाएं। अपने हैंड्स के जरिए जो है मैंने बताया कि आप स्प्रेडिंग करें, इसको फैलाएं। अब बाकी इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं लिखी गई है यहाँ पे कंप्लीट, तो उसको फॉलो करके पूरा कर सकते हैं। तो ये किसी और चीज़ की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हो गई है, नहीं उसी की चल रही है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, ये डालना है, वो डालना है, वो सब पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। ठीक, तो आपको आई होप कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखने आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शंस हम कैसे लिखते हैं, चाहे वो टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो कोई कॉपी बनाने की इंस्ट्रक्शन हो, या कोई खाना पकाने की इंस्ट्रक्शन हो, और कोई जो है कह सकते हैं घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करनी है, आपको कार कोई न्यू खरीदी है, कोई नई गाड़ी खरीदी है, तो उसके सारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन वो भी यूजर गाइड मैनुअल में ही आएगी। अब मैं आपको कोई एक टॉपिक देती हूँ जिसपे आप इंस्ट्रक्शन लिख सके। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ आपके साथ, इस टास्क को एक्सप्लेन करूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, प्रीवियस सेमेस्टर में लैब प्रोजेक्ट के तौर पे बनाई हो, या तो उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दें कि किस तरीके से आपको ये डिवाइस ऑपरेट करनी है। उसके अंदर क्या क्या वार्निंग हो सकती है, प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स।
अदरवाइज आप अपने ही घर की कोई डिवाइस लेके उसके ऊपर वॉल फिटर करके उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस लिख दें कि हम किस तरह से इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके वार्निंग प्रिकॉशंस क्या हैं। कोई आपके घर में मतलब आप किसी गाड़ी के बारे में लिख सकते हैं, उस गाड़ी को किस तरीके से चलाना है, स्टार्ट करना है, उसके इंजन की मेंटेनेंस का ख्याल किस तरह से रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, पेट्रोल कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, पेट्रोल डीजल गैस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो इस तरह से आप पूरा बता सकते हैं। ये सारी बातें उस इंस्ट्रक्शन लिस्ट के बाद हेडिंग में इन सबको भी आप मेंशन करेंगे। इट इज़ अ होमवर्क, आपने ये होमवर्क अपने पास कॉपी पे करके रखते हैं। व्हेन विल बी योर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, देन आई विल चेक इट। ओके, हम यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो रहा है और जो है कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया, उनको मैं बताती चलूँ कि लेक्चर तो इट्स अबाउट टू एंड। मैंने उनको सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस, आज हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि तकरीबन उसके अंदर सब चीज़ें बताई हैं कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह से लिखते हैं, यूज़र गाइड मैनुअल किस तरह से बनाया जाता है, चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो या फिर वो किसी जनरल जो है टॉपिक का हो। ये एक होमवर्क दिया गया है जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस लिखनी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करना आप बता सकते हैं, चाहे वो आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने का पूरा टास्क एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसमें देख लें। उसके इंस्ट्रक्शंस के बाद ये सारे हेडिंग पार्ट भी होने चाहिए। आपने किसी भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सर्किट बनाया हो उसके बारे में भी लिखा जा सकता है, या आपके घर में या एनवायरनमेंट में जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके हवाले से आप ये मैनुअल बना सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।